नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के बाजार में रमजान की रौनक छाई। हमलाबाद के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज भड़के विधायक राजशेखर पाटिल पर। कर्नाटका चुनाव, डीके शिव कुमार सिद्धरामैया ने बनाया संयुक्त मोर्चा, कहा बीजेपी को हराने का है मकसद। कर्नाटक, अनिता कुमारस्वामी ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, अफवाहों पर विश्वास नहीं करती हूँ। बंजारों को ऐसी सूची से नहीं हटाया जाएगा, मंत्री ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज जब रमजान के 12 दिन बीत चुके हैं, बीते दिनों के साथ साथ रमजान की रौनक बाजार में बढ़ती ही जा रही है। शहर के पुराने क्षेत्र गवान चौक, चौबारा, शाहगंज, नई कमान, पुराना सब्जी बाजार और मेन रोड रहे बाजार में शाम के समय वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। सड़कों पर लोगों का इतना हुजूम है कि पैदल चलना मुश्किल बना हुआ है। हालांकि हुजूम को देखते हुए यातायात पुलिस क्रम लेकर यातायात को सुगम बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। शाम होते ही लोग बाजार में उमड़ रहे हैं, चाहे वह फल, सब्जी या कपड़े सहित अन्य सामग्री की दुकानों में बिक्री जोरों पर है। रमजान के माह में दुकानों में हर सामग्री का नया स्टॉक लाए जाने से लोग आकर्षित होकर खरीद के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। इन क्षेत्रों में बीदर के आसपास के लोगों के अलावा बाजार करने पहुंच रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस के उम्मीदवार सीएम फैज क्षेत्र में अपना प्रचार अभियान जारी रखते हुए ग्रामों को भेंट देकर जेडीएस के कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देते हुए लोगों की समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। आज फैज ने एक वार्ता सम्मेलन में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक राजशेखर पाटिल की आलोचना की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಘೋಷಣೆ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ನನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಹಗರಣದ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ನಮಗಂತೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಮಾಹಿತಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ IT ರೇಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಮೌಂಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ IT ರೇಡ್ ಆಯಿತು, ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಸುದ್ದಿನೂ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿನೂ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸುವಮೋಟೋ ಕಂಪ್ಲೇನು IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಂದರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಏನೇನು ಇದ್ರೇನು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಥರ ಒಂದು ಯಾವುದು ಯೋಜನೆಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. MLA ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ನಾನು 20 ಕೋಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 40 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 10 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾದರೂ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು 40% ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿನೂ ಈ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಒಂದು ವಿತರಣೆಯೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೂ ಮತ್ತು IT ರೇಡ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇರಲಿ, IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತನಿಖೆ, ಒಂದು FIR ಶೀಘ್ರನೇ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿನಂತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. अब राज्य के समाचार।
मुख्यमंत्री पद और चुनावी टिकटों को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरों के बीच पार्टी राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का संकल्प लेकर डैमेज कंट्रोल मोड में चली गई है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि मीडिया में उनके बयानों का गलत अर्थ निकाला गया और उनके और शिव कुमार के बीच झगड़े की खबरों को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने जोर देकर कहा कि हालांकि दोनों ही मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं, लेकिन मकसद भाजपा को हराना और कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में लाना है। कल सोमवार मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। मैंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं भी सीएम पद का आकांक्षी हूँ। इसी तरह डी.के. शिव कुमार भी सीएम पद के दावेदार हैं। हम दोनों का मकसद बीजेपी को हराना और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है। जमीनी हकीकत यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में लहर है, भाजपा हारने जा रही है, बादामी विधायक ने कहा। जनता दल सेक्युलर के नेताओं को हसन विधानसभा क्षेत्र के टिकट मुद्दे को हल करने में कठिनाई के बीच पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की पत्नी और रामनगर के विधायक अनिता कुमारस्वामी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका फिर से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अनिता ने सोशल मीडिया पर कहा कि अफवाहें चल रही हैं कि वह फिर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन यह एक बड़ा झूठ है और जेडीएस के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा था। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं फिर से चुनाव नहीं लड़ूंगी। जब मैंने अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी के लिए रामनगर सीट का त्याग कर दिया है, तो मेरे फिर से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले पार्टी नेताओं के निर्देश पर और पार्टी कार्यकर्ताओं के शब्दों का सम्मान करते हुए ही चुनाव लड़ा था। इसके अलावा अनिता ने कहा कि वह केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। लोगों से अनुरोध करती हैं कि वे अफवाहें न फैलाएं या उन पर विश्वास न करें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने धमकी दी है कि अगर महाराष्ट्र ने राज्य के गांवों में अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को वापस नहीं लिया तो बदले की कार्यवाही की जाएगी। दो राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच कर्नाटक में 885 गांवों तक अपनी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ पहुंचाने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को संघीय व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को जवाबी कार्यवाही की चेतावनी दी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि महाराष्ट्र के इस कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसे तुरंत वापस नहीं लिया गया तो परिणाम सही नहीं होंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने स्पष्ट किया कि
अनुसूचित जातियों की सूची से बंजारा और भोवी जैसे छूत दलितों के एक वर्ग को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नारायण स्वामी ने कहा कि कई दलित समूहों ने 30 साल पहले आंतरिक आरक्षण की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था। बोम्बे सरकार ने उन समुदायों की इच्छाओं को पूरा करने का एक सोचा समझा जोखिम उठाया है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने आयोग के बाद आयोगों का गठन करके हमेशा इस मुद्दे को टाल दिया था। बोम्बे के नेतृत्व में भाजपा ने इसे एक वास्तविकता बना दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बंजारों को एससी सूची से नहीं हटाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों में सत्तारूढ़ भाजपा का मानना है कि सूची में शामिल जातियां एससी आरक्षण के तहत लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगी। बंजारा, भोवी और अन्य अछूत दलों का डर कि उनकी जातियों को एससी सूची से हटा दिया जाएगा निराधार है। राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति सदाशिव आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है, इसने इसे केवल आंतरिक आरक्षण देने के संदर्भ बिंदु के रूप में लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा में शामिल होने की चर्चा के बीच अभिनेता किच्चा सुदीप ने स्पष्ट किया कि वह आगामी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगा है। उन्हें भेजे गए धमकी भरे पत्रों पर कन्नड़ सुपरस्टार ने कहा कि वह पुलिस को मामले को संभालने देंगे। कक्षा 6 से 12 के लिए संशोधित राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की इतिहास की किताबों में मुगल साम्राज्य, केंद्रीय इस्लामी भूमि, लोकतंत्र और विविधता पर अध्याय हटा दिए गए हैं। इस कदम के पीछे दक्षिणपंथी विचारधारा के आरोपों के साथ NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सखलानी ने कहा कि संशोधन ओवरलैपिंग की संभावना को कम करने के लिए किए गए थे और किसी वैचारिक कारणों से नहीं थे। NCERT ने कोविड-19 महामारी के बाद कक्षा 6 से 12 के लिए तर्कसंगत सामग्री की सूची जारी की, जो 2022 में लिया गया निर्णय था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के साथ साथ NCERT पाठ्यक्रम का पालन करने वाले राज्य पाठ्यक्रम स्कूलों के तहत पढ़ने वाले छात्रों के लिए अगले शैक्षणिक वर्ष से बदलाव लागू होंगे। पोस्ट की गई तर्कसंगत सामग्री की सूची के साथ इस मुद्दे ने विवाद पैदा कर दिया है, क्योंकि मुगल साम्राज्य, दलित लेखकों और लोकतंत्र पर अध्याय और सामग्री को पूरी तरह से हटा दिया गया है। कई प्रमुख हस्तियों ने पाठ्यपुस्तकों के युक्तिकरण की आलोचना की है, यह आरोप लगाते हुए कि वह भारत में मुगल साम्राज्य के प्रभाव को मिटाने के लिए किया जा रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के संबंध में लोकायुक्त पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC के तहत दर्ज मामले पर सवाल उठाते हुए भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव MP रेणुकाचार्य द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस के नटराजन ने रेणुकाचार्य की एक ही विषय पर कई FIR की दलीलों को खारिज करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, जब लोकायुक्त को पहले ही एक शिकायत मिल चुकी है और एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो CRPC की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए एक सत्र न्यायाधीश के पास वापस जाने और शिकायत को CRPC की धारा 156(3) के तहत संदर्भित करने का सवाल ही नहीं उठता है। एक निजी शिकायत के आधार पर प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए अप्रैल 2015 में दर्ज एक प्राथमिकी को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। भ्रष्टाचार विरोधी वेदिके के अध्यक्ष गुरपादैया ने 30 नवंबर 2015 को दावनगिरी लोकायुक्त पुलिस के समक्ष एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि रेणुकाचार्य ने अपने ज्ञान से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। जब वह 2004 से 2008 तक विधायक और 2009 से 2013 तक कैबिनेट मंत्री रहे, तब आय के स्रोत लोकायुक्त पुलिस चार्जशीट दाखिल करने के लिए सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रही है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के बाजार में रमजान की रौनक छाई। हमलाबाद के JDS उम्मीदवार CM फैज खड़के विधायक राशिदर पाटिल पर। कर्नाटक चुनाव, DK शिव कुमार सिद्धरामैया ने बनाया संयुक्त मोर्चा, कहा बीजेपी को हराने का है मकसद। कर्नाटक, अनिता कुमारस्वामी ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, अफवाहों पर विश्वास नहीं करती हूँ। बंजारों को ऐसी सूची से नहीं हटाया जाएगा, मंत्री ने कहा। KP न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।